हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है डिस्कशन लेकर आया हूं। तो पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जो अगर मैं इंडाइसिस के हिसाब से देखूं तो मैं जो है web.stockage.com में गया हूं। यहाँ पे इंडाइसिस में क्लिक करा है, मार्केट में जाकर इंडाइसिस में क्लिक करने के बाद मैं लूजर में क्लिक करा हुआ है। और लूजर में अगर मैं देखूँ तो 5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा जो है वो डिप आया, तो इंडियन विक्स में निफ्टी 50 TR1, 50 PR और निफ्टी मीडिया। तो इसमें जो मेन जो इंडेक्स है ये निफ्टी मीडिया है। तो मैं निफ्टी मीडिया के अंदर में गया, निफ्टी मीडिया में अंदर जाने के बाद में मैंने स्टॉकेज खोला है। ये स्टॉकेज के बाद में स्क्रीनर में आया हूँ, स्क्रीनर में मैंने निफ्टी मीडिया खोला है। निफ्टी मीडिया जो है ये कौन कौन से स्टॉक के साथ में बना हुआ, तो ये पीवीआर, नज़ारा, टिप्स, सारे गामा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने इसको जो है क्या करा हुआ कि इसको मैंने सॉर्टिंग कर दी है, किससे, सेल से। सेल्स से जब मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा सेल्स जो है किस में हुआ, पीवीआर में हुआ 63% से, उसके बाद में नज़ारा में हुआ 37% से, और टिप्स में हुआ 31% से। तो ये जो है तीन ऊपर के जो स्टॉक्स जो हैं ये मेरे लिए जो है इंटरेस्टेड होंगे। और इसके बाद में सारे गामा है, जो ये जो चार स्टॉक्स जो हैं ये मेरे को जो है इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि ये जो है मुझे अच्छे स्टॉक लग रहे हैं। तो पीवीआर के ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी जो है मैं जो है टिप्स म्यूजिक जो है इसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो है हम टिप्स म्यूजिक को एक बार कवर कर लेते हैं। आपने देखा कि कैसे हाउ आई हैव चूजन द स्टॉक की किस में जो है किस स्टॉक को चूज करना है। अब जो है इस स्टॉक में जो है हम थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। So let's now start with a company introduction. So Tips Music released 92 new songs and grew YouTube subscriber to 125.8 million in Q1 financial year 2026. Could this be your next term long-term wealth creator? Let's discuss. So formerly Tips Industries is called as and Tips Music is a leading music label, but a 5% PAT growth in Q1 financial year 2026 amid competition has investor watching closely. In next 15 minutes, I will show why this stock could be a gem starting with its order value. Let's deep dive into how the music makes money. Founded in 1975, Tips Music is a major music company acquisition and distributing of Bollywood and regional songs across the platforms. Music licensing contribute 90% of revenue, owns 34,000 songs licensing to stream apps like Spotify, YouTube Music, OTT platforms for royalties. 10% of a new release products and promotes new songs like 92 release in Q1 financial year 2026, including Bollywood hits. They monetize through a digital streaming, TV, live events with libraries spanning classic to modern tracks. Now you know what they do. Let's check their business pipeline. Tips Music order value means what are the new musics, what are the new catalogs they are working on with licensing deals. In Q1 financial year 2026, they added 92 songs and signed a licensing agreements with a platform boosting YouTube subscription to 125.8 millions. Their 34,000 songs library generated steady royalties. These pipeline drives revenue, but slower new release could be limited to growth also. Why the Tips Music thriving? Let's look at the industry as well. Industry music of India is booming and Tips Music is one of a spotlight here. Rupees 2,500 crores music market grew 15% annually, driven by streaming and OTT. Digital platforms like Spotify and YouTube account for 80% of revenue. Tips Music adds their 34,000 song library and Bollywood ties, giving them a strong position in a digital first market. What's Tips Music growth plan? Let's discuss. So in Q1 financial year 2026, revenue up by 19% to 88.1 crores, PAT up by 5% to 45.7 crores with 92 new release. They changed the names to Tip Music Limited to focus on a core music business. Appointed Hari Nair as an CEO to drive a digital growth. Rupees 4 per share declare their dividend also, which yield 0.54%. Expanding a catalog with a regional and a Indian musics. Financial year 2025 revenue is 250 crores. Q4 financial year 2024 revenue up is 19.81% to 77.67 crores. Growth looks solid, but what are the risks? Let's discuss. Q4 financial year 2025 EBITDA margin dipped due to higher content cost. Competition from a T series, Sony Music, and piracy on a platforms is a major challenge. Stock down 10% in a past year, trading at 750 rupees on August 2025. Royalty dispute and streaming algorithm changes could hurt the earning also. Now let's look at the numbers. So Tips Music Limited has a market capitalization of 7,422 crores. The current price is 581. If you compare with the intrinsic value, it is little above. Intrinsic value is 309 rupees. The high they have made is 950 rupees and the low they have made is 551 in
लास्ट 52 वीक्स और 1 ईयर यू कैन से। स्टॉक का पी जो है वो 44.0 है। आरओसीई और आरओई काफी बेहतरीन है, 109% और आरओई जो है वो 82.9% का, जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 7,384 करोड़ है। वहीं पर इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल 0.02 के आसपास, बट इसके पास में 119 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पीई 29.9 मीन्स 30 है, तो इंडस्ट्री पीई से काफी ऊपर के वैल्यूएशन में ये हमें देखने को मिल रहा है। सीएफओ बाय पैट जो है वो काफी बेहतरीन है, जितना ये कैश जनरेट करते हैं, जितना ये जो है नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, उतना ही ये कैश भी जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। ऑल टाइम हाई से जो है ये हमें 39% जो है ये हमें चीप सस्ता देखने को मिल रहा है, इससे काफी डाउन आ चुका है। पैट्रिस्टिक स्कोर 9 आउट ऑफ 7 है आउट ऑफ 9, तो ये भी काफी बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 35 का है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2 है, तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे। ये भी आपको मैं बताता हूँ क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री जो कंसिडर करा जाता है वो बेसिकली जो है मीडिया है। मीडिया में बहुत सारे मीडिया के चैनल्स वगैरह, न्यूज चैनल्स वगैरह आते हैं, जो कि इसमें जो है इसका जो इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू को काफी डाउन लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 810 का है। पैग रेशियो काफी बेहतरीन है, 1.22 का। डिविडेंड यील्ड 1.2% का है। अगर मैं पीई से अगर मैं इसकी जर्नी देखूं तो लास्ट 5 साल के में जो है मीडियन के पास में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। 3 साल में जो है मीडियन से ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में भी हमें मीडियन से डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्राइस टू बुक अगर मैं 5 साल से देखूं तो मीडियन से ऊपर है। 3 ईयर्स में देखूं तो मीडियन के बिल्कुल पास में है, और 1 साल में देखूं तो मीडियन से जो है ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो हमने जो है 2 तरीके से हमने कंपेरिजन किया। अगर मैं इसको खुद के कॉम्पिटिटर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये काफी ज्यादा हमें कॉस्टली देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको खुद से ही कंपेयर करूं, चाहे वो पीई से करूं चाहे वो पीबी से करूं, तो 3 साल और 1 साल में ये हमें रीजनली वैल्यूड दिख रहा है। जबकि 5 साल से अगर मैं लास्ट एवरेज से कंपेयर करूं तो स्टिल जो है वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर एंड में हमें देखने को मिल रहा है। इसके प्रोज हैं कि कंपनीज ने जो है अपने डेट रिड्यूस करे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसका 70.3% सीएजीआर का है अगर लास्ट 5 साल का कंपेयर करा जाए। वहीं पर ही आरओई जो है बिल्कुल बेहतरीन है, 77%, और कंपनी जो है ये हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन कर रहा है। वहीं पर ही कौन से देखा जाए तो स्टॉक जो है वो 35.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो लास्ट 3 साल में अगर देखें तो वो 10% से जो है वो डाउन हुई है। वर्किंग डेज कैपिटल जो है वो 7 दिन से जो है 64 डेज में एक एक्सपोनेंशियल डेज में जो है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसका कंपेयर करूं कॉम्पिटिटर से, तो यहाँ पे इसका जो टिप्स का जो मेजर जो कॉम्पिटिटर जो है वो सारेगामा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एचएनआई जो है ये दोनों में इंक्रीज हुए हैं, जबकि सारेगामा में थोड़ा सा एचएनआई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर देखूं तो एक्सपोनेंशियली जो है टिप्स म्यूजिक बहुत ज्यादा कॉस्टली है सारेगामा से अगर मैं कंपेयर करूं। लेकिन अगर आप इसका जो है देखोगे कि सेल्स जो है वो किसने ज्यादा बढ़ाई है, तो लास्ट 3 सालों में जो है टिप्स की सेल्स जो है वो 31.8% से बढ़ी है, जबकि सारेगामा की 26% से बढ़ी है। लेकिन मेजर डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आरओसीई जो है टिप्स का 99.95 है, वहीं पर ही सारेगामा का जो है वो 17.96 है। तो टिप्स का जो है यहाँ पे आपको जो है काफी ज्यादा आरओसीई देखने को मिल रहा है, ठीक है। पैग रेशियो जो है वहीं पर ही टिप्स का जो है काफी बेहतरीन है, 1.22 का। वहीं पर ही सारेगामा से कंपेयर करेंगे तो 6.03 है, तो यहाँ पे जो है टिप्स विनर है। तो अगर मैं जो इसको आरओसी, आरओई, पैग रेशियो और सेल्स में कंपेयर करूं तो टिप्स जो है ये क्लियर विनर है। वहीं पर अगर मैं इसको वैल्यूएशन करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू से बात करूं तो जो है यहाँ पे सारेगामा जो है यहाँ पे हमें विनर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं पीई से देखूं, अगर सिर्फ पीई को देखा जाए तो सारेगामा जो है वो 47 है, टिप्स म्यूजिक जो है वो 43 है। तो वहीं पर ही जो है टिप्स म्यूजिक यहाँ पे अगेन जो है वो विन करता है। तो क्लियर विनर यहाँ पे 4-5 पॉइंट से अगर मैं कंपेयर करूं सारेगामा और टिप्स को, तो टिप्स जो है ये क्लियर विनर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो है अगर मैं कुछ क्वार्टर की बात करूं तो जून 2025 में जो 88 करोड़ का बिजनेस करा है। लास्ट जून 2024 में 74 करोड़ का बिजनेस करा था, 19% से ये ग्रोथ हुआ है। मार्च 2025 में 78 करोड़ का बिजनेस था, वहीं पर मार्च 2024 में 63 करोड़ का बिजनेस था, तो ये 24% से ग्रो करा है। तो लास्ट अगर मैं 4 क्वार्टर की बात करूं तो 32%, 19%, 24% और 19% से जो है ये इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सेल्स में, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। वहीं पर जो है नेट प्रॉफिट में भी जो है एक हमें अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं लास्ट 4 क्वार्टर की बात करूं तो 21% से ग्रोथ है, 27% से 18% से, और लास्ट क्वार्टर में जो है मात्र 5% से जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको पूरे ईयर टू ईयर कंपैरिजन करूं, लास्ट 5 साल के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मार्च 2022 में जो है 136 करोड़ का बिजनेस जो है वो 2023 में जो है 187 करोड़ 187 करोड़ के आसपास जो है वो बढ़ा है, जो कि 37% से ग्रोथ करा था। मार्च 2024 में 242 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, जो कि 29% से बढ़ा है। मार्च 2025 में जो है 311 करोड़, जो कि 28% से बढ़ा है। और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, 311 करोड़ से 325 करोड़ के आसपास में कुछ ना कुछ रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली हुआ है। आने वाले जो 3 क्वार्टर हैं वो बताएंगे कि पूरे जो है
जब हम मार्च क्लोज करेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट जो है वो अगर मैं लास्ट 4 साल की बात करूँ तो 77 करोड़ से 127 करोड़ बढ़ के 167 करोड़ और अभी 169 करोड़ के आसपास का डेटा दिखा रहा है लास्ट 12 मंथ्स का। अगर मैं इसका जो है 10 साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो सेल्स मात्र 12% से ग्रोथ करी है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 51% से ग्रोथ करा है और इसका जो प्राइस जो मूवमेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली 66% से ग्रोथ करा हुआ है। यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने का मिल रहा है सिर्फ 12 ट्रेलिंग मंथ में, जहाँ की सेल्स 24% से प्रॉफिट 18% से, लेकिन जो प्राइस जो है वो -20%, प्राइस जो है वो जो है 20% से जो है वो डाउन आया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं बात करूँ तो 48% का 10 साल का रहता था, लेकिन अगर मैं लास्ट के 5 3 साल और 1 साल में करूँ तो 71 77% एंड 83%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बेहतरीन ऑल टाइम हाई जो है 83% पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट हमने जो है ऑलरेडी हमने देखा था कि ये जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपना रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। लास्ट अगर मैं 4 साल की बात करूँ तो 89 करोड़, फिर 123 करोड़, 167 करोड़ और अभी 197 करोड़ के आसपास का इनका जो है रिजर्व हमें यहाँ पे देखने में को मिल रहा है। और जितना ये नेट प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं उतना ही ये जो है अपने कैश फ्लो में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। आप इनका देख सकते हो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो लास्ट 4 सालों में बिल्कुल पॉजिटिव है। 2022 में 29 करोड़, 2023 में 81 करोड़, 2024 में 233 करोड़ एंड 2025 में 120 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर ही जो है डेटर डेज जो है वो 42 टू 32 डेज में गया हुआ है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल 40 दिन का 32 दिन हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है -46 से 64 डेज हुआ है। आरओसी जो है वो एक्सपोनेंशियली काफी बेहतरीन है, 86 87 104% और 109% के आसपास में आरओसी देखने को मिल रहा है, जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। वहीं पर भी जो है प्रमोटर की होल्डिंग, ये जो कंसर्न जो दिखा रहा था कि 74.98% जो 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग होती थी वो घट के जो है अभी 64.15% के आसपास में हुई है। लेकिन अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो जो कि 0.06% मात्र होल्ड करते थे वो बढ़ के जो है उन्होंने 8% की होल्डिंग कर दी है। वहीं पर डीआईआई की अगेन जो 0% की जो होल्डिंग होती थी वो बढ़ के जो है वो 4.08% की होल्डिंग हो गई है। वहीं पर भी जो पब्लिक की होल्डिंग 24.96 मींस 25% के आसपास में जो रहती थी वो बढ़ के जो है वो ऑलमोस्ट 26.78 जो है वो मैक्सिमम गई थी, नहीं मैक्सिमम जो है 29.32 गई है। उसके बाद में जून 2024 में ये घट के 26.74 हुआ है। लास्ट मार्च 2025 के क्वार्टर में जो है 24.10 है और वहां से भी अभी घट के जो है वो 23.66 के आसपास में हुआ है। तो यहाँ पे जो है पब्लिक जो है अपनी पोजीशन को डिल्यूट कर रही है, अपने यहाँ से जो है सेल कर रही है और ये जो है एफआईआई और डीआईआई इसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हैं। जो प्रमोटर ने भी जो यहाँ पे जो सेलिंग करी थी वो भी पूरी जो है वो एफआईआई और डीआईआई ने इन दोनों ने बाय करी है, जो कि हम जो है इसको पॉजिटिव भी मानेंगे। आप इसके एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग और कौन कॉल में डेफिनेटली आप इसमें जो है वो गो थ्रू करिएगा। अब जो है हम इसके चलते हैं टेक्निकल की तरफ। तो ये जो टेक्निकल जो है ये चार्ट जो है मैंने आपको वीकली चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। वीकली चार्ट में जो है अगर मैं इसका जो है एक पैटर्न में बोलूँ तो 17 जनवरी 2022 से इसका एक पैटर्न बन रहा है, अपर बेस पैटर्न। अपर बेस पैटर्न में जो है ये यहाँ पे जो है जनवरी 2022 में यहाँ से ये डाउनवर्ड आया और मई 2023 में आके इसने एक बेस बना के जो है फिर ये ऊपर की रैली दी है। रैली देने के बाद में ये ऊपर का जो बेस जो है यहाँ पे इसने टच करा, यहाँ से ऊपर के ऊपर जो एक जो हमने जो लाइन बनाई है वहां से ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे आया है और अभी ये जहाँ पे ये 1 2 2 बार जहाँ पे इसने ऑलरेडी जो है टच करा था, तीसरी बार भी लेवल में अभी वहीं पर ये टच करा उसके आसपास में है। और यहाँ पे जो इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था 19 फरवरी 2024 का जो इसका रेसिस्टेंस था, 15 जुलाई 2024 में जो इसने ब्रेकआउट दिया वहां से जो रिट्रेस करके बिल्कुल अपने रिट्रेस लेवल के पास में है। आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये यहाँ से जो है एक फर्दर मूवमेंट जो है ये हमें डेफिनेटली यहाँ से जो है ये दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है पूरी कंपनी की एनालिसिस करी है। इसमें जो है हमने पूरे कंपनी का डीप डाइव करा कि कैसे जो है हमने पहले जो है इसके इंडेक्स लेवल पे हम गए। इंडेक्स लेवल में जाने के बाद में हमने कंपनी को स्टडी करा, कंपनी को देखा और कंपनी को हमने जो है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से हमने इसमें डीप डाइव करा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो है मेरी वीडियोस को आप दिखाइए, उनको बताइए कि किस तरीके से कंपनी की स्टडी होती है और हम जो है किस तरीके से इस तरह की कंपनीज में जो है पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म जर्नी जो है हम साथ में चल सकते हैं और एक एक लंबा अच्छा वेल्थ क्रिएशन जो है वो हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ ये जो है वीडियोस को जो है आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये जितनी भी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ये एजुकेशन पर्पस से है, किसी भी तरीके से मेरी कोई भी रिकमेंडेशन ये बाइंग या सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है आप डेफिनेटली जो है ये कंसिडरेशन करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नए स्टॉक नए कंपनी के बारे में हम स्टडीज करेंगे, उसके बारे में डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।